Good morning. Today we are going to study the topic pharyngitis and laryngitis. Both of them are upper respiratory tract infection. Here you can see the structure of pharynx. What is pharyngitis? Acute pharyngitis is a sudden painful inflammation of the pharynx, the back portion of the throat that includes the posterior third of the tongue, soft palate and tonsils. मीन्स जो फैरिंग्स का जो पोर्शन दैट इज़ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, सॉफ्ट पैलेट एंड टॉन्सिल्स, इस एरिया में जो इन्फ्लेमेशन है दैट इज़ pharyngitis. One of the most common condition encountered in primary care and children are commonly infected. Etiology causes are viruses and bacteria. Most cases are viral etiology, benign and self-limited. For example, the viruses responsible are adenovirus, influenza virus, Epstein-Barr virus and herpes simplex virus. Bacterial pharyngitis most common cause group A streptococcus or group A vita hemolytic streptococcus. Streptococcus pyogenes is also called. Epidemiology, viral infection are perennial and means they are around the year and more common in young children. Streptococcal sore throat, it is also called SST, are common in winter season and in older children greater than 3 years. So in young children viral pharyngitis is common, and in children more than 3 years streptococcal sore throat or bacterial pharyngitis is common. Symptoms are dry cough, fever, vasodilation of this vessels in that area, edema, redness and swelling of the tonsillar pillar, uvula and soft palate. A creamy exudate may be present in the tonsillar pillar, tonsillar exudate. As when there is vasodilation, there will be exudate, there will be edema. So exudate is of creamy color, and lymph node enlargement and anterior cervical lymphadenopathy. You can find out anterior cervical lymphadenopathy by palpating the neck of the patient. Symptom, presence of rhinitis, cough and hoarseness of voice is rare in SST and indicate viral etiology. You can see the picture, first one, the upper one is of viral pharyngitis. In this rhinitis means running nose, cough and hoarseness of voice common होगा, and sore throat throat sign are generally minimal in viral illness, while SST is associated with marked inflammation, follicular exudate and usually tender cervical lymphadenopathy. मीन्स जो वायरल फेरेंजाइटिस है उसमें थ्रोट में आपको ज़्यादा कुछ साइन नहीं दिखेंगे. उसमें बच्चों को रनिंग नोज होगा, कफ होगा और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी. लेकिन जो स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट है उसमें थ्रोट साइन ज़्यादा दिखेंगे, जैसे कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो है, फॉलिकुलर एक्सुडेट दिखेगा. ऐसे लिम्फ नोड जो है, जो सर्वाइकल लिम्फ नोड है उनके एनलार्जमेंट होगी. सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कितना इन्फ्लेमेशन है और उसमें क्रीमी कलर का एक्सुडेट आ रहा है. और अगर नेक को आप पाल्पेट करोगे तो लिम्फ नोड भी स्वोलन मिलेंगे. फेरेंजाइटिस की डायग्नोसिस के लिए हम जो है उसको लेंसर क्राइटेरिया पे डायग्नोज करते हैं कि किस पेशेंट को एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, किसको नहीं है. जैसे क्राइटेरिया है टॉन्सिलर एक्सुडेट, पॉइंट है 1. अगर टॉन्सिलर एक्सुडेट है तो 1 पॉइंट देंगे. सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी को 0.1 है. फीवर मोर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड को 1 पॉइंट है. एज 3 to 14 ईयर्स को 1 पॉइंट है क्योंकि इस एज में ये कॉमन है. और एज 15 to 44 को 0 नंबर है. और एज ग्रेटर देन 45 को -1 है. एब्सेंस ऑफ कफ जो है 1 है. स्कोर जो है अगर 0 है तो नो टेस्टिंग, नो एंटीबॉडीज. 1 to 3 ईयर में टेस्टिंग और 1 to 3 स्कोर है तो टेस्टिंग.
और 4 to 5 है तो एंटीबॉडीज आर एंटीबायोटिक्स शुड बी स्टार्टेड। डायग्नोसिस में जो थ्रोट कल्चर है दैट इज इंडिकेटेड इन क्लिनिकली सस्पेक्टेड केसेस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट एंड पास्ट हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर एंड हार्ट डिजीज, सस्पेक्टेड डिप्थीरिया। एंटीबॉडी टाइटर्स में ASO टाइटर आर यूजुअली नेगेटिव इन अर्ली स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट। सो हम थ्रोट कल्चर के बेस पे ही जो है डायग्नोस कर सकते हैं सस्पेक्टेड केसेस में। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में डिप्थीरिया है। डिप्थीरिया में एक टफ मेम्ब्रेन होती है, जैसे फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं दैट मेम्ब्रेन ब्लीड्स ऑन सेपरेशन। ये और सेकंड जो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में भी फेरेंजाइटिस के सिम्टम आते हैं, उसमें एटिपिकल लिम्फोसाइट में जो लिम्फोसाइट है वो कार्टव्हील स्ट्रक्चर का होगा, उसकी शेप जो है कार्टव्हील जैसे होगी। और मिजल्स में कॉप्लिक स्पॉट जो है फर्स्ट और सेकंड मोलर के सामने है, अपर मोलर के सामने। और इसमें जो बाहर जो एक रेड कलर की ग्रे लेयर होगी, रेड कलर की लेयर होगी। रेड कलर की लेयर के अंदर एक राउंड लेयर है, उसके अंदर एक रिंग के अंदर जो सैंड लाइक पार्टिकल है वैसे ग्रे कलर की इन्फ्लेमेशन है। तो ये जो मीजल के अपीयरेंस से जब मीजल का इन्फेक्शन हो जाता है तो ये सिम्टम्स बाकी सिम्टम से पहले 2 to 3 डेज पहले जो है अपीयर हो जाता है। वायरल सोर थ्रोट जो है वो सेल्फ लिमिटिंग है और उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही हम करते हैं, जैसे विद रेस्ट, जैसे वॉइस रेस्ट, ज़्यादा बोलना नहीं है, फॉर्म सेलाइन के गार्गल्स करने हैं, सॉफ्ट डाइट है, एंटीपायरेटिक PCM 10 to 15 mg पर kg पर डोज है। एंटीबायोटिक जो है अगर कल्चर प्रूवन केसेस है तो उसमें एमोक्सिसिलिन जैसे 25 to 50 mg पर kg पर डे इंटू 10 डेज इसके लिए। जैसे अगर 10 kg का बेबी है, 25 to 50 का रेंज है, हमने 30 से शुरू किया, हम 25 से 50 तक किसी भी डोज से शुरू कर सकते हैं। जनरली हम मिड डोज से 30 से लेके चलते हैं। तो 10 kg का बेबी है तो 300 mg आएगा उसका पर डे का, जिसको हम अगर BD में डिवाइड करेंगे तो 150 मॉर्निंग 150 नाइट में। लेकिन जो सिरप है वो हमारे पास स्ट्रेंथ में आते हैं 228 mg, 457 mg, 625 mg की टेबलेट आती है, तो हमने देना है 150। तो हम 228 वाली अगर सिरप सेलेक्ट करेंगे तो 1 ml में 45.7 mg आता है। तो उसको 45.7 से हम इसको डिवाइड करेंगे 150 को, तो जो जनरली 3 ml के आसपास आता है, 3 to 3.5, 3 से 3.5 ml के आसपास, जो बेबी को मॉर्निंग 3.5 के आसपास जो है इवनिंग में उसको सिरप देना है। ओरल एजिथ्रोमाइसिन जो है 10 to 15 mg पर kg पर डे OD एम्प्टी स्टमक देना है 3 to 5 डेज़ के लिए। मीन्स अगर 10 kg का बेबी तो उसको 100 mg हमको देना है, एम्प्टी स्टमक जो है अर्ली मॉर्निंग देना है, उसको सिंगल डोज देनी है और 3 to 5 डेज़ के लिए देते हैं। प्रिवेंशन के लिए जो है प्रिवेंशन ऑफ SST इज़ इम्पॉर्टेंट स्पेशली इन केसेस प्रीवियस रूमेटिक फीवर रिक्वायरिंग प्रीवियस तो लॉन्ग टर्म पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस। जिस पेशेंट में पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस पे ऑलरेडी वो है, जिसको रूमेटिक फीवर पास्ट में हो चुका है, ऐसे केसेस में SST का प्रिवेंशन जो है इम्पॉर्टेंट है। और स्ट्रेप्टोकोकल वैक्सीन जो है मैनी कंट्रीज़ में अवेलेबल है बट इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इट इज़ नॉट रूटीनली इंडिकेटेड। लेरेंजाइटिस क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कई बार आपको ऐसे केसेस मिलेंगे जैसे किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद उसकी वॉइस ही चली गई, पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, तो ये केसेस जनरली लेरेंजाइटिस के केस में मिलता है। इट इज़ स्वेलिंग ऑफ laryngeal mucosa and underlying tissue. You can see in this picture, the upper picture is the normal vocal cord and second में inflamed vocal cord. Etiology is viral, infection is viral or bacterial, or there may be autoimmune causes of laryngitis. Clinical feature is hoarseness of voice, high pitched husky voice. The hoarseness of voice may be out of proportion to systemic signs and symptoms, means बाकी साइंस और सिम्टम के कंपैरेटिवली
प्रोपोर्शनेटली जो है हॉर्सनेस जो है वो ज़्यादा होगी। डिस्कम्फर्ट ऑफ द थ्रोट, पेन इन थ्रोट, डिजनी एंड सिवियर एडिमा, ड्राई एंड इरिटेंट कफ, जनरलाइज सिम्टम मैलेज, फीवर, टक्सीमिया इज रेयर, मोर कॉमन इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सिस्टमिक जो सिमेट्रिकल रेडनेस और जो स्टिकी सिक्रेशन ऑन बोथ वोकल कॉर्ड एट इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी। इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन कि हम लैरिंगोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं वोकल कॉर्ड को। Progressive generally it is if it is a viral etiology it will resolve in few days. The hoarseness may persist for as long as 2 weeks after apparent resolution. A functional aphonia may follow especially in women. Aphonia means वो बोल नहीं सकता, तो ऐसे जो वुमेन में अफोनिया जो हो सकता है। इन सीवियर केसेस इन्फ्लेमेशन स्प्रेड टू द लंग्स इन एज्ड पेशेंट में वो लंग में भी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कर सकते हैं। ट्रीटमेंट जनरली रेस्ट एंड सेडेटिव्स, अवॉइडेंस ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको, सिस्टमिक एंटीबायोटिक जैसे एमोक्सिसिलिन है 25 to 50 mg पर kg पर डे जो बीडी में हम दे सकते हैं, और डॉक्जीसाइक्लिन 2 to 5 mg पर kg पर डे बीडी में, और एरिथ्रोमाइसिन 30 to 50 mg पर kg पर डे।